Good morning, class. We were doing binomial theorem. But it is now has been deleted from the class 11 CBSE curriculum. So we left that this topic binomial theorem, and today we're going to start the new topic, that is complex number and quadratic equation, right? And it is chapter number 5 from of your book of NCERT class 11 textbook. And this chapter has two parts. One is complex number and quadratic equation. Quadratic equations you have heard, and you have been done so many questions, so many types of problem in the class 10th as well in quadratic equation. Firstly, we will start the topic complex number, and after this we will start the quadratic equation. Okay. So we're going to start the topic is complex number. That word suggests you that complex, which that words, what the meaning has come, what the picture has formed in your mind when you say the thing, the word complex. Complex means something is real, something is not real, something is visible, something is not visible. For example, I'm just only explaining you this whole explanation I am giving you for your only understanding, right? So it is not a mathematical understanding I am telling you. Mathematically that I will start here, but some few things I am telling you here to start. First to start this topic, that complex number meaning is that, for example, you imagine in picture and somehow some part which is quite more very much visible, which you can see very clearly, and some other part of that picture which is not very clear, then you would say the whole picture is not very clear. You would say that picture is concept, that picture is that picture is complex. That picture you would say that picture is complex. Meaning is that some parts, also we can say some parts are real, some parts are imaginary, right? So on combining these two things, that picture has formed that word. What you suggest, that word would you suggest for that picture is complex. In the same manner, if you come on the complex number, so which has two parts, one is real, one is imaginary, right? On adding these two parts, real and imaginary, if you add them, then you will get complex number, right? How it is created, and already we know, we are very much familiar from the real number. And also you have done so many things and so many types of question also you might be done in the earlier classes, in the 9th and so on, right? In all these earlier classes, real number line also you have heard the word, that is real number line. It is minus plus infinity to minus infinity. It is real number line on which every real number can be exist on that real number line, right? This whole thing has been mentioned. It is mentioned in the class 9 book and 10 book and some other book in your earlier classes. But today the term which we have to more focus, that is imaginary part. What is imaginary number? What is imaginary part? This thing we have to understand, right? So now firstly we're going to start a lecture from imaginary part, right? So I just take one equation. I let one quadratic equation. So this chapter has two parts. One is complex number and one is quadratic. Today we're going to start. I'm going to explain you complex number, right? So for the complex number, some imaginary part I'm going to explain you. Let one quadratic equation, that let x square plus 1 is equal to 0. You let it. If I say you find the value of x from here, so what the answer would become? X square is equal to minus 1. Can it be possible? It is not possible mathematically, because on squaring of any real number, that result always be positive or 0, but it is coming negative. So what would you suggest? You would suggest that x will be negative. On removing the square from this side, the root comes on the other side with two signs, plus and minus. Clear? So now here the value of x is coming root minus 1. Now next assumption, we suppose that let root x is root minus 1 is equal to I. We let it out.
and that I calls iota. Iota means I is nothing. The value of I is root minus 1. Wherever the I is written, it is meaning that I means root minus 1. For example, if it is mentioned that root minus 2, this term we can write as root minus 1 into root 2. Clearly, it is what? It's a value of I. So also we can write I into root 2. That's solved. For example, if somewhere mentioned root minus 4, right? This number we can write as root minus 1 into and root 4. Okay, root minus 1 for this place we can write I, and root 4 become 2. It is 2i or I2, whatever you write. It is also correct. It is also correct. So that number is called imaginary, because if you multiply I to any real number, that number become imaginary number. Clear? So if we add this imaginary number to any real number, that the whole number become complex number, right? So after this, and there are so many examples we maybe have. For example, if you're taking minus 5 into 5, if somewhere it is mentioned there, what is it? What is the meaning? So for this thing, yeah, मैं for example ले रहा हूँ minus root minus 4, right? So it is minus 1. It is minus 1 is mentioning here. After this, root minus 1, root into I. इसको आप ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे root 4, right? तो ये आपका रहेगा माइनस, इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे I, और इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे 2. It is minus 2i. It is clear? Also, another thing also I am telling you. For example, if it is mentioned that 0 को मैं कैसे ले सकता हूं? जीरो तो एक रियल नंबर है, ठीक है? मतलब बात समझ में क्या आ रही है? रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर आपका इमेजिनरी होगा. क्लियर? रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है. आपने क्लास जो अपने आप 12-13 ईयर से मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम द प्ले ग्रुप अप टू द क्लास 10th, आपने कभी रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट नहीं देखा होगा जी. अब यहाँ पर आपको रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट मिल रहा है, तो जब रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट मिल रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं दैट नंबर इज इमेजिनरी. उसमें आप आई इंट्रोड्यूस करेंगे, आई. बस यहाँ पर रूट माइनस 1, वहां पर आपका आई आ जाएगा. सिंपल. क्लियर? अब जैसे आई 0 लिखा हुआ है, अब आप 0 को आई के टर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, आप इसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0 इंटू रूट माइनस 1, तो 0 इंटू रूट माइनस 1 आपको 0 इंटू समथिंग 0. जो मैथमेटिक्स का रूल है वो फॉलो होगा, कोई नई चीज ये नहीं है. नॉर्मल मैथमेटिक्स तो सिंपल लगेगा, ठीक है? अब आप इसको आई इंटू 0 भी लिख सकते हैं. आपने इसकी प्लेस पे आई लिख लिया और 0 लिख लिया, 0 इंटू आई. 0 को आप 0 इंटू आई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. क्लियर? एंड सो ऑन. तो ये कुछ मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिए आई को समझाने के लिए कि व्हाट इज आई, आई कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद ये क्लास, अब यहां पर क्वेश्चन आया, अब समझा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है क्लास? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आप देखिए, अब इसी पर फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे. आपको एक तो लर्न करना है क्लास, आई इक्वल आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं, आपको लर्न करना है. और इस तरह की चीजों का इस तरह से सॉल्व आप करेंगे जो मैंने आपको इलस्ट्रेट किया है. अब जैसे कि आप बोल रहे हैं, आपने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर. सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? देखिए, पहली बात तो आपको जानना है कि जैसे कि आप रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरैशनल को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है? इस तरह से होल नंबर को डब्ल्यू से एंड नेचुरल को एन से, ऐसे आप लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लास हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज, ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट्स आपको कॉपी में नोट करना है. ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड. स्मॉल जेड से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे.
क्लियर? तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा? तो जो मैंने आपको पिक्चर का एक एग्जांपल दिया, उस पिक्चर के एग्जांपल से आप क्या लिखेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? z is equal to a plus ib. What does it mean? इसका मतलब क्या है? अब इसमें दो पार्ट है, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट a है, इट इज द रियल पार्ट। एंड ib, जो b वाला पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि b में i मल्टीपल है। मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी रियल नंबर में आप i मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इमेजिनरी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। z का जो रियल पार्ट है वो a है, एंड I am which representing imaginary, I am of bracket z is equal to b। z का इमेजिनरी पार्ट b है, रियल पार्ट a है, और आपका नंबर बन गया a प्लस ib। अब कुछ एग्जाम्पल दूं, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और आता है इमेजिनरी नंबर। अब सर क्वेश्चन ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं चीजें। मैं इसको रेस कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए मैं जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2 + 3i, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। i3 लिखें, 3i लिखें, बात बराबर है। आप i कम्यूटेटिव है, i को आगे लिखें बाद में लिखें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं -2 - i3 एंड +2 - 2i into √3, ठीक है? ठीक है, ऑल आर द इमेजिनरी नंबर, ठीक है, सॉरी ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि लिखा हुआ है -2i, क्या सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ये इमेजिनरी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। इसको आप कैसे a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसे लिखेंगे 0 - 2i। जैसे लिखा हुआ है 2i फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा 0 + 2i। अब इसमें रियल क्या है? इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। क्लियर? अच्छा, आप लिख रहे हैं -i into √5, -i into √5। आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 0 - i into √5। अब इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -√5 है। साइन को भी साथ में लेंगे, साइन भी इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ में आएगा। अब क्लास मैंने ये नंबर्स लिखे, अब इसे पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वो ये है कि सर जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, इन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अब आपको अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए मैं यहां पर छोटा सा एक टेबल बना लेता हूं। These are the real, मैं यहां लिखूंगा इन नंबर्स का रियल पार्ट और यहां मैं लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib होता है, मैंने यहां मेंशन किया है, आप देख रहे हैं 2 + 3i। देखिए अब a जो है वो रियल है, b क्या है वो इमेजिनरी। यहां पर a क्या है 2, b क्या है 3। यहां पर देखिए रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट -3। इस माइनस साइन को भी, इस साइन को भी आप लेंगे। देखिए यहां +3 था तो मैंने +3 लिखा, यहां -3 यहां पर मैंने -3 लिखा। यहां पर देखिए यहां आपका हो जाएगा 2 - 3, 2 रियल पार्ट है और -3 इमेजिनरी पार्ट है। यहां समझिएगा, यहां नंबर लिखा था -2i। -2i में अगर क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन आ गया फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम -2i, तो आप इसे लिखेंगे 0 - 2i के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। i को नहीं लिखेंगे, खाली b को लिखेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट। यहां देखिए 2i लिखा हुआ है तो 0 + 2, यहां आपका -i √5 लिखा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा 0 and -√5, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आप और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल √2। अब क्या सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट हो जाए। कैसे? इसको आप लिखेंगे √2 + i into 0, i into 0 0 हो जाएगा, 0 + √2 आएगा। तो यहां पर रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट √2, इमेजिनरी पार्ट 0। क्लियर? अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं -3 तो रियल नंबर है, बट इसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये आपका हो जाएगा -3
प्लस आई इंटू 0। अब -3 क्या हो गया? -3 इज रियल पार्ट, 0 इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? प्लस ये कुछ मैंने आप कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा मैंने यहां पर प्रैक्टिस कराया। इन सब सारे नोट्स को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद देखिए एक और नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब इक्वलिटी टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। देखिए जो ए एंड बी है, ए एंड बी कुछ भी हो सकते हैं, ए एंड बी फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 1/2 प्लस आई इंटू 3/4। अब यहां पर ए क्या है, ए इज 1/2, ये इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा 1/2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा 3/4। अब जैसे यहां पर आपको एक और एग्जांपल लीजिए, 1/√2 माइनस आई इंटू √3/2, कुछ भी हो सकता है क्लास। ए बी के प्लेस पे आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर रियल पार्ट क्या हो गया 1/√2, क्लियर। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ z लिखेंगे, z मतलब ये z है ना, यहां पे z लिया है, z का रियल पार्ट, z का इमेजिनरी पार्ट, ये आपका हो जाएगा -√3/2। इट इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, क्लियर, ओके। अब इसके बाद क्लास हम आपको इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास। अब यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक आपने Z1 लिया, Z1 is A plus IB and Z2 is C plus ID, ठीक है। If Z1 is equal to Z2, अगर Z1 Z2 इक्वल है तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा A plus IB is equal to C plus ID, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए। अब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा A is equal to C implying that and B is equal to D। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम ले रहे हैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल लिया आपने, फॉर एग्जांपल को आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपका Z है x plus 2i, ठीक है, और आपने Z2 लिया है -3 plus iy, फॉर एग्जांपल। मैंने कहा फाइंड, ये गिवन है, ये गिवन है, और फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और इसमें क्या गिवन है, और इसमें गिवन है Z1 is equal to Z2, ये गिवन है, दिस पार्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इक्वेशन के अंदर गिवन होगा कि Z1 Z2 दोनों इक्वल है। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा x plus 2i is equal to -3 plus iy, ठीक है। अब रियल पार्ट से इक्वल करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करिए, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -3, x की वैल्यू आ गई, y कैसे आएगा, यहां पर देखिए i के मल्टीपल में क्या है, +2i है, यहां पर i के मल्टीपल में क्या है, y है, सिर्फ y है ना, तो आप लेंगे y is equal to 2, क्वेश्चन ओवर, ठीक है, इट इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक और एग्जाम्पल क्लास देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल Z1 लिया है 3 - 2i और Z2 है आपका 3 - iy। अब मैंने कहा कि और Z1 Z2 दोनों इक्वल है, Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3 - 2i इज इक्वल टू 3 - iy। तो देखिए 3 के इक्वल तो है ही है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y कैसे आप फाइंड करेंगे, यहां पर i में क्या मल्टीपल है, -2, यहां पर i में क्या मल्टीपल है, -y। साइन को ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर आपको ध्यान देना है साइन पर, i के साथ जो मल्टीपल है वो यहां ले लीजिए,
आई के साथ जो मल्टीपल वो यहां ले लीजिए. अब यहां माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर. ओके क्लास, अंडरस्टैंड? तो ये आपको इस तरह से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने में क्वेश्चन याद है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ओके, after this class equality of two complex number, now I'm going to start the next is algebra of complex number, right? So in this section we shall develop the algebra of complex number. Class firstly you must know what is the meaning of algebra of two complex number. What is algebra? This word you have heard since from class 3rd and 4th. Algebra is a branch of mathematics. The algebra, and it has its particular literature. I am not going into the literature, right? But we must know if the term comes algebra of any number, one word also you have seen and also you have heard algebra of rational number, algebra of natural number, and so on. So what is the meaning of algebra of something? Algebra meaning is that we do study and we shall observe. If you do addition of complex number, means we shall study addition of complex number, subtraction of complex number, multiplication of complex number, and division of complex number. Class, after this, these are the 4 basic arithmetic operator: plus, minus, multiply, and division. Right? After this, one thing more also I just would like to use that sign of subtraction. Also, we can study with the sign of addition, and division also we can study with the help of with the sign of multiplication. Means we can express with addition sign, we can express subtraction, and we can study division with the help of multiplication. Sir, how? Just see one thing. This is all I'm telling you I'm giving you the knowledge of this thing. Also I may do directly, also I may start the problem, also I may start the topic, but I'm not doing. Just firstly I am explaining you what is the meaning of algebra. ये जो मैं बोल रहा हूँ प्लस माइनस क्या है, ये क्या होता है, देखो ध्यान दो आप. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 minus 3, तो इट इज सब्ट्रैक्शन, बट इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 plus minus 3. देखिए मैंने माइनस को प्लस में एक्सप्रेस कर लिया. सेकेंड, अगर लिखा हुआ है 2/3, व्हाट इज दिस इज डिवीजन. तो डिवीजन को मैं एक्सप्रेस करूंगा मल्टीप्लाई में, कैसे? 2 into 1/3, राइट? सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपकी नॉलेज के लिए. अब हम आ जाए अपने टॉपिक पर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको 4 चीजें स्टडी करना है: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अब यहां लिखेंगे. पहले आप देखना एडिशन कैसे आप करते हैं. फर्स्ट इज एडिशन ऑफ two complex number, right? It is our sub topic. तो इसके अंदर आप देखिए, आपने 2 नंबर लेट किए, लेट Z1 एंड Z2. Z1 आपने लिया a plus ib एंड Z2 आपने लिया x plus iy. ठीक है, Z1 Z2 आपने लेट कर लिया. अब जब आप इनको एडिशन कैसे करेंगे, Z1 plus Z2 को आप यहाँ लिखेंगे a plus ib एंड ये Z1 है प्लस ये Z2 है आपका. देखिए ऐड कैसे होता है. एडिशन में रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस x. ठीक है, तो ये हो जाएगा ib प्लस iy. फिर आप दोनों के i लेंगे कॉमन, तो आप ये हो जाएगा b प्लस 1. ये आपका हो गया एडिशन. क्लियर? इट इज द एडिशन. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल Z1 आपने लिया 2 plus 3i, Z2 आपने लिया 4 plus 5i. आप Z1 plus Z2 कर रहे हैं, सो 2 plus 4 plus i कॉमन 3 plus 5, तो आपका ये हो गया 6 plus 8i. इट इज आंसर, राइट? एंड सो ऑन. तो ये हो गया एडिशन. अब एडिशन के अंदर देखिए क्या क्या चीजें होती हैं. एडिशन के अंदर आप स्टडी करेंगे. इट इज एडिशन. आई एम इरेजिंग इट वन. And whatever I'm writing here, also you copy down in your notebook. Okay. So in algebra of first thing you write down in your notebook. First thing, it is closure property. मतलब in addition it holds
इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? पहली बात तो ये होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है ह्यूमन बीइंग विकेट्स ह्यूमन बीइंग्स, कैट विकेट्स कैट। मीनिंग इज दैट अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप देखिए उसको लिखते तो z से हैं, बट जो सिंबल आप यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं c। c स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स, c यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। z से आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने लिखा z इज इक्वल x प्लस iy, ठीक है, और c से आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। z से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, c साइन आप लेंगे। क्या पे लिख लीजिए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कंफ्यूज मत हो बहुत ज्यादा। इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट थिंग ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है इट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग इज दैट z1 plus z2 is equal to z2 plus, दोनों का मीनिंग अलग सेम होगा। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो साइन दोनों के वैल्यू सेम आएगा। थर्ड थिंग देखिए आप, थर्ड आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर आ रही है, क्लियर। अलजेब्रा के अंदर एडिशन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, ये आपको नॉलेज में रखना है अपनी, ठीक है। इनका यूज भी हो जाएगा, यूज भी होगा, लेकिन आपको सारी चीजें ये सब एक बार की होती है, आप एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है? यू टेक इफ यू टेक थ्री नंबर z1 z2 z3, आप 3 नंबर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। इसको हम अपनी लैंग्वेज समझाते ऐसा है कि एक रूम है, रूम के अंदर दो लोग हैं, z1 बाहर है। अब आप क्या करेंगे, z1 को रूम के अंदर लेंगे, z3 को बाहर कर देंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ चीज देखिए, फोर्थ चीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर है जो है जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में आप ले लो जीरो, जीरो भी रियल नंबर है, जीरो को आप किसी रियल नंबर में ऐड करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। 0 प्लस 2, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस रूट 2 एंड सो ऑन, आपको वही नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन अ सेम वे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक आपका जीरो है, 0 प्लस आई इंटू जीरो, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, क्लियर। तो इसको लिखते हैं एग्जिस्टेंस, मतलब प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो आप देखेंगे यहां आपने z लेट किया, 0 प्लस आई इंटू जीरो, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जीरो ही जीरो होगा। अब आप इसको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, फॉर एग्जांपल आपने z1 में ऐड किया और आपने z को z1 में ऐड किया तो आपको z1 ही मिल रहा है। z क्या है? 0 प्लस आई, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड अगर आप z1 को z में ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज z? z इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज z, राइट। ये मैंने लेट किया है तो ये इसके इक्वल आएगा, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आपका फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आपका होता है एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर एडिटिव इनवर्स भी आपको मिलेगा। अगर आप जैसे z है, z का जैसे 2 है, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, √3 में -√3 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 में प्लस करेंगे -1/2 तो 0 आएगा, क्लियर। ऐसे ही यहां पर आप z में -z अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो इसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, राइट। अब जैसे आपने कोई नंबर z लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया a प्लस आई बी, आपने कोई z ले लिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा आप ये लिखिए लाइक दैट, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या होगा? माइनस a ऑफ is माइनस a प्लस आई बी, क्या होगा?
z का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a प्लस ib, मतलब कि माइनस z। तो z का एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा, z में माइनस z जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपका अलजेब्रा, ये अलजेब्रा एडिशन की हुई, ठीक है। सेम वर्किंग सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगी, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, अब हम आपको एग्जांपल कराएंगे सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लास देखिए, अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इसको हम स्टडी करेंगे फर्दर वीडियोस में। आज वीडियोस में हमने एडिशन तक आपको एक्सप्लेन किया। आज हम आपको असाइनमेंट में एडिशन की प्रॉब्लम सेंड करेंगे और हम करेंगे इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इस पर बेस मैंने क्वेश्चन लिया है, इसी मैं आपका असाइनमेंट में ही क्वेश्चन आपको आज सेंड करूंगा, ठीक है ना। जो फर्दर वीडियोस होंगे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इसमें मेन है मल्टीप्लिकेशन। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाएगा, उसको आपको a प्लस IB के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ चीजें CBSE बोर्ड से हट गई हैं, डिलीट हो गई हैं, ठीक है ना, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस i ब्रैकेट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 6i, राइट, एंड x and y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए, हम रियल को रियल से हम कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से हम कंपेयर करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 4x प्लस i 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने माइनस को 6 में ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आप 4x इज इक्वल टू 3 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 आएगी, क्लियर। फिर आप करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू आप यहां प्लेस करिए, 3 इंटू 3/4 minus y is equal to minus 6, it is 9/4 minus y is equal to minus 6, right, and 9/4 plus 6 is equal to y, ठीक है। ये आपका होगा 24 plus 9 33 upon 9 is equal to y, ये आपके y की वैल्यू होगी, यार दिस इज द आंसर। क्लास एक गलत कैलकुलेशन, upon 4 होगा 33/4, right, it is the value of y and it is the value of x, this is the answer, okay क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर स्टार्ट करेंगे।